Good morning, students. In the class 12 commerce in the accountancy, in the online classes today we are going to solve some multiple choice question that is based on your first chapter, accounting for partnership for fundamentals. So as you know that in the first term we have to face the multiple choice question paper for your first term examination. So in this way we should make the practice on the chapter basis for your better performance in the examination. So in this series today we are going to solve some multiple choice question. So you should also take the participation in the solving the multiple choice questions. So here I have taken some multiple choice question based on your chapter. So one by one we will try to solve this multiple choice question, and you also solve these multiple choice question when you are watching when you are visiting or when you are watching this video. So students, our first question is, which of the following item is not dealt through the profit and loss appropriation accounts? So अब आपको बताना है कि which of the following item, there are some item are given in the options that is not dealt through the profit and loss appropriation accounts. So interest on partners loan account, partners salary, interest on partners capital, partners commission. So यहाँ पे आंसर स्टूडेंट क्या होना चाहिए? अब आपको इसको बताना है कि आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है कि when we prepare the profit and loss appropriation accounts, all the item are deal under the 2, 3rd, 2nd, B, C and D are deal under the profit and loss appropriation accounts, and the 1A partners loan account is not deal in the profit and loss appropriation accounts. So our answer will be A here. Okay. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द सेकंड क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज अलाउड. मतलब कोई पार्टनरशिप का इन द एब्सेंस कोई पार्टनरशिप में कोई डीड या फिर कोई एग्रीमेंट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द पार्टनर इन अलाउड. कितना परसेंट पे, अगर पार्टनर के लोन पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट पे करना चाहिए, ठीक है, फर्म को. तो ए है 8%, बी है 6% पर एनम एंड सी इज़ 12% पर एनम एंड डी नो इंटरेस्ट इज अलाउड. तो यहाँ पे ऑप्शन बताइए. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर बी है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन to the of a partner should be allowed at a rate of 6% per annum. Okay. So now let's move to the another question. So a manager get 5% commission on net profit. After charging such commission, gross profit is 2,90,000 and expenses of the indirect nature other than the manager commission are 80,000. कमीशन विल बी. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मैनेजर का कमीशन जो है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. अदर देन अगर दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें पता है कि नेट प्रॉफिट पे कमीशन किस पे देना है, कमीशन प्रोवाइड करना है नेट प्रॉफिट को. तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन ईयर 2,90,000 एज ए ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस कर देंगे. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,10,000. ठीक है. अब यहाँ पे देखें कमीशन दिया है 5% और आफ्टर का केस है. तो आफ्टर के केस में क्या करते हैं, 2,10,000 कर देंगे. आफ्टर के केस में करते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं. तो 100 प्लस रेट कर देंगे 105. तो 105 से इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन 5% जो कमीशन उसको दिया जाएगा मैनेजर को, कमीशन कितना होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 10,000 का। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ द, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be paid to the partner if provided for in the partnership deed but only out of, भाई अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पे देना है लोन, इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल पे हमें पे करना है तो हमारे पास केवल जब ही हम इसको पे करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिख रखा हो, चाहे लिख रखा हो, हम इसको जब ही पे करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, और किसी से हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे नहीं करने वाले। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पास है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनरशिप द प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, हम सिर्फ प्रॉफिट से ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। ओके, तब हमारे पास अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। अब क्या कि फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या क्या जो बेसिक एलिमेंट हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, हम यहाँ पे देखते हैं। एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल शेयर ऑफ पार्टनर्स एंड लॉसेस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेसेस। अब यहाँ पे ये बोला गया कि जो पार्टनरशिप का जो इसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेप्ट, उसमें क्या चीज़ जो है अपवाद है, इसमें बताया गया 4 ऑप्शन में। तो यहाँ पे एक्सेप्ट इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये कंपलसरी नहीं है कि इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा कि एक्सेप्ट, बोला था एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ज़रूरी नहीं है कि यही हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ये भी होना चाहिए। और देयर शुड बी इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ द एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑल द पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट दैट द पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ द एबव। तो इस वाले में ऑप्शन क्या होगा, तो इस वाले में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइंडिंग ऑल द पार्टनर। किसी भी पार्टनरशिप का जो एक्ट होता है वो सभी पार्टनर को बाइंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, एक्स ड्रॉ फिक्स कैपिटल एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% per annum, at the end of the year interest on drawing of the y amounting interest on drawing of the y is amounting 4,125 and drawing of the x will be। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो दे रखा है, तो यहाँ पे उसने कितना क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हमें ये बताना है कि उसने कितना ड्राइंग कर रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, अगर हमें पता करना है कि एक्स पे अगर इसका कैलकुलेशन कैसे किया होगा, अगर हमें पता है कि इंटरेस्ट हमारा 4,000 है, 4,125 है, इज इक्वल टू एक्स पे कैलकुलेट किया हो गया। एक्स अगर हम मान लें कि हमारा ड्राइंग है, तो ड्राइंग पे अगर 15% और अगर ये एंड ऑफ द मंथ है तो एंड ऑफ द मंथ के लिए क्या हो जाएगा 5.5 का एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 60,000, यानी कि 60,000 की टोटल ड्राइंग हो गई
और डिवाइडेड बाय अगर 12 कर दें तो टोटल मंथली ड्राइंग कितनी हो जाएगी 5000 की। तो आंसर नंबर हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रखा है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो हम उस फार्मूले को यूज करते हुए उस पर एक्स ड्राइंग इज इक्वल टू एक्स मान करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एर्थ वाला क्वेश्चन है कि एर्थ में बोला ए बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म, दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट टू द इंटरेस्ट, देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर। किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? अगर प्रॉफिट जो है प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमारे पास प्रॉफिट जो है सफिशिएंट नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पे रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो यहाँ पे इफ देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट द रेशियो ऑफ द अबाउट द पार्टनर्स, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट का सफिशिएंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, इंटरेस्ट को भी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सफिशिएंट नहीं, तो उस केस में जो नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो जब प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट तो उस कंडीशन में जो भी रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट है विल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आंसर नंबर हमारे यहाँ पर हो जाएगा सी। अब 9th देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पे करना चाहिए? अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कितना पे करना चाहिए? अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप में अगर एब्सेंस है, एब्सेंस कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाएगा तो इन केस तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होना चाहिए? 8%, 9%, 12% या फिर डी नो इंटरेस्ट इज चार्ज। तो अगर इन द एब्सेंस है पार्टनरशिप में, अगर कोई एग्रीमेंट में ऐसा एब्सेंस है, कुछ बताया नहीं गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड, यानी कि आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। 10th, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप क्या होता है? तो अंडर पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर है वो क्या है? लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है कि नो लायबिलिटी, या फिर डिपेंड ऑन द सिचुएशन? तो यहाँ पे आंसर हमारा बी है, अनलिमिटेड होता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है। द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट आर, द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारा जो पार्टनर्स का करंट बैलेंस होता है वो क्या हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो आंसर नंबर हमारा सी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑन द 1st July 2018 द पार्टनर्स इंट्रोड्यूस इन द फर्म एडिशनल कैपिटल 5000 in the absence of partnership deed on 31st March 2000 interest will be received। अब पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नथिंग इज मेंशन, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो यहाँ पे न तो 300 रुपये मिलेगा, न तो 250 रुपये मिलेगा, न तो 180। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, A, B, C are the partners in the ratio of 5:3:2. Before B shall leave 1700, firm's net profit is 9700. How much is total B's received from the firm? अब यहाँ पे पार्टनरशिप का जो रेशियो 5:3:2 है, बिफोर बी सैलरी, बी के सैलरी देने से पहले जो फर्म का जो प्रॉफिट है, जो सैलरी देने से पहले 1700, तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है? वो 9700। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अब यहाँ पे सैलरी अगर हम पे कर देंगे तो 1700 की सैलरी पे कर दें तो 8000 हमें बैलेंस बच जाएगा। इस 8000 को कैसे डिवाइड कर दिया जाएगा 10 से, तो 8 दूनी 16, तो 1600 रुपया ये, ठीक, और 1700 ये, नहीं 8 2 जा 8 8 24, तो 2400 का तो उसको प्रॉफिट में शेयर हो गया और 1700 का ये शेयर मिल गया इसको सैलरी का, तो टोटल उसका जो प्रॉफिट शेयर बन जाएगा 4100 का बन जाएगा बी का। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा 4500। तो अगर सैलरी हम इसको पे कर दे तो कितना बैलेंस बच जाएगा 8000 का प्रॉफिट। अब 8000 का प्रॉफिट को 5:3:2 में अगर करेंगे तो बी का जो शेयर आ जाएगा कितना आ जाएगा 800 इंटू 3, तो 24 आ रहा है, और 24 में 1700 ऐड कर देंगे तो 4100 हो जाएगा। अब 13 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर एंड द कैपिटल इज़ द मिडिल ऑफ द ईयर। तो 14 का आंसर हो जाएगा हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड किया था, किस पे प्रोवाइड किया था, ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, एक्सेस अमाउंट दैट्स द फर्म गेट ओवर द एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ इट्स बिजनेस इज। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ द फर्म गेट ओवर द अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ इट्स बिजनेस इज, किस तरीके की इसको प्रॉफिट बोला जाता है। इसको हम लोग कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं कि सुपर प्रॉफिट बोलते हैं कि रिजर्व बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आज हमने 15 क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड एंड द टॉपिक एंड you are now able to solve some MCQ that is based on the chapter number 1. So in the another video we will solve some another practical, or you can say the multiple choice question for your examination preparation. Okay, till then, goodbye, thank you.